باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ کا عنوان اس میں بھی توحید کی اہمیت کی جی اس کیا اہمیت ہے یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ راوی حدیث کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث آپ کو خاص ایک موقع پر اور خاص یعنی توجہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو بیان فرمائی جی، اور اس کے اندر جو احکام یعنی جو باتیں ارشاد فرمائی اس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو راوی کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اپنی سواری یعنی گدھے پر سوار تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی سواری پر میں بھی سوار تھا۔ جی سبحان اللہ، یہ سب کتنے خوش قسمت یہ لوگ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہیں۔ جی بالکل۔ دوسری بات دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی دیکھیے، اور اپنے یعنی امتی اور ایک مسلمان کے ساتھ محبت اور الفت دیکھیے، اور آپ کی عاجزی اور انکساری دیکھیے۔ جی یہ وجہ ہے تخلیق کائنات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تمام چھوٹی بڑی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ جی جی بعد از بزرگ تو قصہ مختصر اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ جی تو اتنی بڑی ذات مقام مرتبہ دی، اپنے ایک غلام کو بھی اپنی سواری کے ساتھ ہی بٹھا رکھا، سوار کر رکھا۔ جی جی آج حاجی صاحب اگر کوئی امیر، کوئی چودھری صاحب، کوئی اس طرح کا یعنی گھوڑے پر خاص کر سوار ہو تو وہ اپنے ساتھ کسی کو سوار نہیں کرتا۔ ہاں جی جو جی میری اس میں یعنی کیا ہے توہین ہے کہ جی میرے غلام ہیں اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل گاڑیوں کا زمانہ آ گیا ہے، کاروں کا زمانہ ہے، جی جی تو بہت کم لوگ اپنے غلاموں کو یعنی اپنے گھر میں کام کاج کرنے والوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں بہت کم بٹھاتی ہے۔ جی اگر کہیں بٹھانا پڑے تو ضرورت کے لیے بٹھائیں گے کہ مجھے وہاں سے سودا لانا ہے یا کوئی ایسی کام ہے، ورنہ بیچاروں کو بالکل ہی ایسے ہی ان کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ یہ عمل ہے، نہ یہ قول ہے، نہ یہ فعل ہے، جی بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بھی پیار، محبت اور ان کو برابری، اور ان کے دل میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میں ان کا نوکر و غلام ہوں، تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ جی لہذا اکثر لوگ جو آج کل نوکر کہتے ہیں یا اس طرح کے لفظ جس سے مطلب یہ ہے کہ اس کا گھٹیا پن، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جی جی وہ ساتھ ظرفی سے کام لینا چاہیے اور اخلاق سے کام لینا چاہیے۔ چھوٹا ہے تو اسے بیٹا کہہ کر بلانا چاہیے، بڑا ہے برابر کا ہے تو بھائی کہہ کر، بڑا ہے تو پھر انکل، یہ جو بھی ہے ایک تو یہ اس کو بلانا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ بڑا نرمی سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کے دل میں کہ تو نوکر ہے، تو ہمارا یہ ہے، یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے، اس سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ جی جی اور کسی کا دل توڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جس کسی کے دل کو یعنی خوش کرنا، تو جب خوش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ جی جی تو بہرحال گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری گدھے پر سوار تھے، اور صحابی فرماتے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جی جی کہتے ہیں اور کتنی بات کی ہے، لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل۔ جی فرمایا میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بس ایک کجاوے کا پچھلا حصہ ہی حائل تھا۔ حاجی صاحب آپ نے دیکھا یہ جو اونٹوں پر اور یہ گھوڑوں پر زین رکھتے ہیں، ایک ہاں جی جسے لکڑی کی ایک کاٹھی بنائی ہوتی ہے، زین بنائی بالکل ہوتی یہ ہے، دیکھی ہوئی ہے۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، اور ایک درمیان میں ایک لکڑی ہوتی تیر کی طرح لگائی ہوتی ہے، جی اور اسی طرح ایک حصہ پیچھے ہوتا ہے، سیٹ پیچھے یعنی دو سیٹیں ہوتی ہیں۔ اونٹ کے خاص کر کوہان ہوتا ہے، تو کوہان کے درمیان میں جو کوہان جگہ ہے وہاں پر وہ لکڑی ہوتی ہے، اور ایک پچھلے حصے میں سیٹ ہوتی ہے اور ایک اگلے حصے میں سیٹ ہوتی ہے۔ جی جی اسی طرح گھوڑے کے اوپر تو عام طور پر ویسے آج کل تو ایک سیٹ والا وہ اس کی بناتے کجاوا
लेकिन पहले 2 सीटों वाला बनाते थे तो उसके दरमियान में एक लकड़ी होती है जी जो अगले आदमी के लिए टेक होती है, दोनों के दरमियान में फासला भी होता है थोड़ा सा। तो साहबी कह रहे हैं कि मेरे और आपसे के दरमियान में सिर्फ वो एक कजावे का पिछला हिस्सा ही था बस, और मेरे और आपसे के दरमियान में कोई फासला नहीं था। यानी बताना मकसद ये है कि एक तो कुर्ब बताना मकसद ये है, दूसरा ये है कि जो मैं बात बता रहा हूं, मैं बयान कर रहा हूं, इसमें कोई मेरे और आपसे के दरमियान में दूरी नहीं थी कि मैं कोई सुनने में या मुझे याद करने में कोई मुझसे गलती हो गई जी। ये बात कता नहीं, मैं बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या इरशाद फरमाया? फरमाया माज हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही, तुझे मालूम है कि अल्लाह ताला का हक अपने बंदों पर क्या है जी? जी। और इसी तरह हक़्क़ुल इबाद अल्लाह, बंदों का हक अल्लाह पर क्या है जी? जी जी। यानी पहले तो फरमाया कि जानते हो बंदों पर अल्लाह ताला का क्या हक है जी, और फिर फरमाया कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक है जी? जी। अच्छा जी। तो हजरत मुआज़ कहते अल्लाह व रसूल, मैंने कहा अल्लाह के रसूल आप और अल्लाह ही ज्यादा जानते हैं, तो ये तो मालूम नहीं है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्न हक़्क़ल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि अय्याबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, कि वो अल्लाह की इबादत करें इस तरह के अल्लाह की ज़ात सिफात में किसी किस्म को भी इबादत में शरीक ना करें। जी बिल्कुल। ये है बंदों पर अल्लाह ताला का हक। अब बंदों का हक अल्लाह पर क्या है जी? वह हक़्क़ुल इबाद अल्लाह अल्ला युअज़्ज़िब मन ला युशरिकु बिही शैअन। सुभान अल्लाह जी। अब अल्लाह ताला के ऊपर कोई हक नहीं है, क्योंकि हक तो उसके ऊपर होता है जो किसी का मोहताज हो। अल्लाह ताला तो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला तो अपने सारी मखलूक को अपनी नेमतों से और अपने एहसानात से नवाजा है जी। जी। तो लेकिन इसके बावजूद अल्लाह फरमा रहा है कि नहीं, मेरे बंदों का मेरे पर भी हक है। वो क्या है? आपने फरमाया कि जो शिरक ना करे अल्लाह ताला उसको अजाब ना दे, ये बंदों का अल्लाह पर हक। जी जी। अच्छा, ये बात इख्तिसार में इरशाद फरमाने के बाद हजरत मुआज़ कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल अफला उबश्शिरु बिहिन्नास, क्या मैं लोगों को ये बात खुशखबरी के तौर पर बता ना दूं, या तुम शिरक से बचते रहना, और अगर और कोई कमी कुताही हो जाए तो अल्लाह गफूर रहीम ज़ात है, तो इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, तो ये तुम्हारी मग़फ़िरत और बख्शिश और अल्लाह ताला के ऊपर हक हो जाएगा कि अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुबश्शिरुहुम फयत्तकिलू, फरमाया कि भाई उनको बशारत ना दो कि वो इसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे भी। लो जी, ये मैंने पीछे वो हमने पढ़ा था ना कुरान अज़ीम में कि बाज बातें अवामुन्नास में करने वाली होती हैं और बाज नहीं करने वाली होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये अगर मसलन ये है कि आगे हदीस का पूरा हिस्सा बयान ना किया, जितना हिस्सा बयान किया जाए तो लोग तो बैठ जाएंगे आराम से जी। ठीक है, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर रहे, लेकिन साथ ये भी तो फरमाया अय्याबुदूहु वला युशरिकू बिही शैअन, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करें जी। तो अब नमाज इबादत है जी, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है जी। इबादत करते रहें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें जी जी। अब एक बंदा कहे कि मैं इबादत नहीं करता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक भी नहीं करता, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए बहुत खैर वाला मामला है। यानी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करना जो उसके लिए बहुत खैर वाला मामला है। लेकिन जो इबादत नहीं कर रहा तो ये भी तो अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। अल्लाह ताला की नाफरमानी तो इंसान के यानी उसको तो मुनासिब नहीं, उसके लायक के अल्लाह ताला की नाफरमानी करे। जी जी बिल्कुल। नीचे पर हदीस मुबारका में आ रहा है, वो हदीस मुबारका भी हजरत मुआज़ बिन जबल ही से है, लेकिन अल्फाज रावी हजरत अनस हैं और अल्फाज थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। तो इसमें ये फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना फरमाने की वजह से ये बात मुसलमानों को बयान ना की। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, अखबरा बिहा मुआज़ इंदा मौतिही तअस्सुमन,
आसम की वफात के बाद हजरत मुआज ने ये हदीस मुबारका लोगों को बयान कर दी, जी कहीं मैं गुनाहगार ना हो जाऊं कि अगर मैं बयान ना करूं तो वही इल्म के छुपाने के जुमरा में मैं ना आ जाऊं। इसलिए हजरत मुआज ने बाद में जिक्र की आसम के मना फरमाने की वजह से आपकी हयात में वो हदीस को आगे लोगों के सामने बयान नहीं किया। जी देखिए जी, तर्जमा अन मुआज़िन फरमाते क़ाल कुन्तु था मैं रदीफ़न नबी रिदफ़न नबी, नबी सल्लल्लाहु के एक सफर में नबी सल्लल्लाहु के पीछे अला हिमारन गधे पर सवार था। रिदफ़ कहते पीछे को जी। अच्छा जी, लैसा बैनी व बैनहु इल्ला मुअख्खिरतुर रहल जी, नहीं था मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में फासला मगर कजावे का पिछला हिस्सा। रहल कहते हैं कजावा को जी, और मुअख्खिर कहते हैं पिछले हिस्से को जी, या पिछला हिस्सा ही हायल था और हमारे दरमियान में कोई चीज फासिल न हायल नहीं थी। काला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या मुआज़ ऐ मुआज़ हल तदरी, हल मैंने क्या तदरी मैंने आप जानते हैं, मा हक़्क़ुल्लाह अला इबादिही, अल्लाह का हक बंदों पर क्या है जी। मामना क्या है, हक में ये हमने उधर तरीक़ुल असरी में पढ़ा है, माँ का माना जी जी, यानी माँ क्या है, हक़्क़ुल्लाह अल्लाह का हक, अला इबादिही अल्लाह के बंदों पर। अच्छा जी, वमा हक़्क़ुल इबाद अल्लाह व मिन, और मामना क्या हक़्क़ुल इबाद बंदों का हक अल्लाह पर क्या है जी। कुल तो अल्लाह व रसूलुहु आलम, हजरत मुआज़ कहते मैंने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही जानते हैं जी। तो काला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्न हक़्क़ल्लाहि अलल इबाद, बस अल्लाह ताला का हक बंदों पर क्या है जी, अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें कि उसके साथ किसी को शरीक ना करें जी। व हक़्क़ुल इबाद अल्लाह, और बंदों का हक अल्लाह पर क्या है, अल्लाह युअज़्ज़िबा, ये कि अल्लाह अजाब तकलीफ न दे, मल्ला युशरिक बिही शैया, जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करे जी, तो उसको अल्लाह ताला अजाब और तकलीफ न दे। फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, अफला उबश्शिरु बिहिन्नास, क्या मैं ये लोगों को खुशखबरी ना सुना दूं। काला फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तुबश्शिरहुम, तुम उनको खुशखबरी ये ना सुनाओ, फयत्तकिलू, क्योंकि वो इसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे और आमाल छोड़ देंगे। जी जी, और क्या बात इसी पर कि अल्लाह ताला के साथ हम किसी को शरीक नहीं कर रहे, और सुस्ती और काहली शुरू कर देंगे, और इसमें उनमें सुस्ती आ जाएगी और एक अमल पर बैठ जाएंगे कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं कर रहे। इसलिए आपने फरमाया कि मुसलमानों को ये बात नहीं बतानी ताकि ये आमाल में लगे रहे और आमाल में जुड़े रहें। जी जी, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, और अल्लाह ताला को ज़ात और सिफात में एक मानने की और इस पे हमेशा इस्तिकामत कायम दायम रहने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।